ल्यूज़गेल्ड का मतलब रैंसम मनी. कोंटो, कोंटो का मतलब है अकाउंट, अकाउंट, कोंटो. alle persönliche Information मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन. Ja, es passiert, it happens an einem normalen Tag, on a normal day. Ja, Malware, Malware, Cyberkriminalität, Cyberkriminality. Zugreifen मतलब कंट्रोल लेना. Übernehmen, zugreifen. Übernehmen means they take your control. Ja, Angst machen, डराना. Sicherheitsprotokoll, Safety Measures. Daten missbrauchen, missbrauchen का मतलब है misuse. Net Banking, फोन पे, also alles ist ja heutzutage nur mit Internet möglich. Okay, und welche Seite? Was ist unser? 229. So, Arzt oder Patient, Doktor oder Patient? Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Wer sagt das? Arzt. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich seit Tagen krank. Patient. Ich schreibe Sie krank. Trinken Sie viel Tee und ruhen Sie sich aus. Arzt. Sie haben eine Erkältung. Bleiben Sie ein paar Tage zu Hause. Arzt. Wann muss es die Medikamente nehmen? Patient. Patient बोलो, Patient. Ich habe Magenschmerzen. Patient. Gute Besserung. Arzt. Get well soon. Ich habe seit 3 Tagen Fieber. Patient. Patient has fever. Welche Krankheit ist das? Which? Fever. Fever. And here? Erkältung or Husten. Husten is खांसी, कफ, Husten. Erkältung, जुकाम हो सकता है, साथ में जुकाम भी लगा हो. Der Husten, das Fieber. Und Kopfschmerzen. Headache. Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen, das Fieber, der Husten. Und hier? Magenschmerzen. Ja. So, Fieber, Husten, Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Das sind dann also Erkrankungen, disease. And which one is suitable for which disease? Bleiben Sie im Bett. Sie müssen viel schlafen. You stay in bed. Fieber. Ja. Man muss schlafen. Richtig. 1 ist für 1. Okay. Nehmen Sie den Hustensaft 3-mal täglich. Husten. Das ist dann 3. Das war 1. Das ist 3. Dann essen Sie heute nichts. Don't eat anything today. Magenschmerzen. Okay, Magenschmerzen. Und dann nehmen Sie eine Kopfschmerztablette. Kopfschmerzen. Kopfschmerztablette. Blur? Okay, Moment. Okay.
ये नेटवर्क आती है थोड़ा ब्लर, फिर बिल्कुल ब्लर फिर सही हो जाता है। हाँ, नेटवर्क का कभी कभी इश्यू हो जाता है। Gute Besserung. Gute Besserung, was ist richtig? Kreuzen Sie an. Medikamente kann man. कहाँ मेडिसिन ली जाती है, कहाँ खरीदते हैं अपन मेडिसिन? In their apothecary. वो भी और जो बे मेडिकामेंट है naturalist in their apotheker, यहाँ पे लेते हैं हम लोग मेडिसिन। Zwei Termine beim Arzt bei der Ärztin macht man By their Sprechstunde या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, स्प्रेशस्टुंडे मतलब उनका कंसल्टेशन, हेल्प, ये कस्टमर केयर जो भी फोन उठाता है उनके हिल्फ है, स्प्रेशस्टुंडे हिल्फ है, वो बताते हैं आपको अपॉइंटमेंट। टर्मिन तो वही बताएंगे डॉक्टर साहब कब अवेलेबल है। Alle Versicherten haben eine kranke Versichertenkarte या क्रांकन फर्जिशर्टन कार्टे, काटे। 3 वर्ड्स बना के इन्होंने 3 को 1 बना दिया। क्रांकन फर्जिशर्टन कार्टे। Das Rezept für die Medikamente bekommt man, किससे मिलती है ये? बाय मार्स्ट। रिसेप्ट का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर देते हैं भाई, वही लिख के देते हैं। Lesen Sie den Text und sammeln Sie Tipps gegen Magenschmerzen. Get tips from against Magenschmerzen. पेट दर्द है तो किसी ने बोला Omas Tipps bei Magenschmerzen. Was macht man gegen Magenschmerzen? किसी ने नेट में लिख दिया किसी प्लेटफॉर्म पे कि भाई पेट दर्द के लिए क्या किया जा सकता है, कोई टिप ही बताओ। सो एक एक करके आप खुद बताओ, चारों लोग एक एक टिप, 4 है यहाँ पे। Simone, Meine Oma hat einen super Tipp. Sie trinkt heißen Kamillentee, den Tee mit Honig, Honig. Schinken und Fertig. Das hilft sehr gut. sehr gut. So Kamillentee जो है वो टे मिट होनिश, हनी के साथ चाय बनती है कोई। und fertig प्योर खत्म प्रॉब्लम। fertig means over. das hilft sehr gut. it helps really very good. okay दीपाली, नीलेश, Karte. Das ist ein klasse Tipp. Danke. Ein Gruppe hilft bei mir auch immer Super. या das ist ein klasse Tipp. ये तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया टिप है। Danke, thank you. Eine super hilft bei mir auch immer super. Super मतलब सूप भी मेरे तो बढ़िया काम कर जाता है। Super, सूप। ओके नीलेश, जागस तू? ओके, नेटवर्क इशू है आपका। दीपाली, टू ट्रांसलेशन। Sonnenmarie. Ich gehe bei Magenschmerzen immer zum Arzt, der kann am besten helfen. Der kann am besten helfen. Yeah, he can help you the best. So I go to doctor. Whenever I have this problem, I go to doctor. He can help me the best. Okay? Yeah, the horse. Ich finde, man sollte zu Hause im Bett bleiben, Cola und Zahnputzen helfen auch. Ja. Ich finde, man sollte. Ihr Bett. Ja. Cola und Satzstangen helfen auch. ये जड़ी बूटियां हैं। तो कोला हो गया सर, साल्स्टेंगन कोई जूस हुआ किसी चीज़ कोई का? हाँ, कोई जड़ी बूटी का जूस है, जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे मुलेठी टाइप में होती है, ऐसे कोई स्टिक आती है, राइट, उसका बताया इसने कि वो भी हेल्प कर सकते हैं इसमें।
एक मिनट चेक करते हैं। जाल्स स्टांगन, कोई जड़ी बूटी है ये, जाल्स स्टांगन। मोमेंट, चेकन। जाल्स स्टांगन। अन नहीं, स्टांगन ये सीधा। आई थिंक 10 एक्स्ट्रा आ गया आपका। जाल्स स्टांगन। स्टांगन, कुछ तो मुलेठी टाइप का सा मामला। हाँ, ये जाल्स स्टांगन, कुछ तो बना रखा है इन्होंने। किस चीज का बनता है ये तो देखना पड़ेगा, बट ये हेल्प करता है। जाल्स स्टांगन, गुट और गुंस्टिश knaber Gepäck। या ये है भाई, हेल्प करता है ये। या das ist Salz Stangen। Das hören Sie, ich habe, was sollte ich machen? Was zu essen? Meine Hose passt mir nicht। पैंट नहीं आ रही इसको, क्या करना चाहिए इसको? पैंट नहीं आ रही तो छोटे भैया को दे देनी चाहिए, या ये एक साइज बड़ी लेनी चाहिए। या बड़ी लेनी चाहिए, राइट। ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, राइट। ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये इंपेरेटिव है। सो माइना हो जे पास्ट में निस्ट, मेरी पैंट तो मुझे आई नहीं रही। तो गिव deinen Bruder, ja, oder kauf ein bisschen, ja, geh zum Schneider, टेलर के पास जाओ, वो करेगा मदद और लगा देगा कुछ तो एक्स्ट्रा है। oder kauf vielleicht eine Größe länger, एक नंबर ज्यादा लो, या ऐसे। आपको डायरेक्ट वर्ब लिखनी होती है इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव का याद है ना, डू, ईयर और जी, इनसे ही बनता है इंपेरेटिव। जैसे मान लो कोई बोले कि तुम घर पे रहते हो, डू ब्लाइब्स्ट सू हाउस है, ये होगा सेंटेंस। डू इंपेरेटिव आपने कराया है? टू हाउस है, पता नहीं कराया तो अभी करा रहा हूं। नहीं कराया, ठीक है, फिर उस पे पेज पे कराता हूं मैं। उस पे इंपेरेटिव नहीं कराया तो करते हैं फिर अपन फ्रेश तरीके से। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव जनरली हम लोग या तो ऑर्डर के लिए, किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे कम हियर, इधर आजा, बैठ, काम कर, सो जा, उठ, खेल, जा, आ, ये जो बोलते हैं सबसे छोटे सेंटेंस इंपेरेटिव के ही हो सकते हैं। आ हो गया सेंटेंस, बात हो गई। सो ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकता है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन जैसे मान लो कि ओपन द डोर ना, आपको कोई डिब्बा खोलना है, कोई मशीन खोलनी है, कैसे चलानी है, तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कई बार कि आप तो ऐसा करिए। मान लो आप कुछ लेके आए हो रेसिपी, उसमें लिखा हुआ है कैसे बनानी है, पहले पानी उबालिए ना, स्टेप्स 1 by 1, तो इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं उसको हम ना। सो इंस्ट्रक्शंस, सजेशंस, रिक्वेस्ट, ये सब इसमें कवर होता है। और आप इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर उसी को तो दे सकते हो जो सामने है। बंदा सामने होना चाहिए, तो सामने आपके कौन होता है? या तो डू होता है, या ईयर होता है, या फिर जी। टू का ही प्लूरल ये है और इसका प्लूरल ये खुद ही है, तो यही हो सकते हैं सामने। तो मतलब इंपेरेटिव केवल इन्हीं के लिए बनेगा,
इंपेरेटिव में जैसे सेंटेंस मैंने वहां लिखा था, डू ब्लाइब्स्ट सु हाउजे, डू ब्लाइब्स्ट सु हाउजे, तो ईयर से हो जाएगा ईयर, ये इंपेरेटिव नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस लिख रहा हूं एक बार, ईयर ब्लाइब्ड सु हाउजे। जी से क्या होगा, जी लाइबल हाउस, जी ब्लाइबन सु हाउजे। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें आपको बोलूं मैं, डू मार्क्स योगा, ईयर मार्क्ड योगा, जी माखन योगा, या डू ट्रिंक्स्ट वासर, ईयर ट्रिंक्ड वासर और जी ट्रिंकन वासर, ऐसे कुछ भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। आप जब इंपेरेटिव बनाते हो तो इंपेरेटिव में एक रूल फॉलो कर सकते हैं हम लोग, 3-2-1, 3-2-1, ये रूल का नाम है। 3-2-1 इसलिए बोल रहा हूं मैं कि डू से अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें 3 चीज उड़ानी है, सब्जेक्ट उड़ा दो, उसका एसटी फॉर्म उड़ा दो और फुल स्टॉप उड़ा दो, 3 को उड़ा दो। ईयर का है तो 2 को उड़ा दो, सब्जेक्ट को उड़ा दो और फुल स्टॉप को उड़ा दो। और अगर जी वाला है तो किसको उड़ाएं, केवल फुल स्टॉप को उड़ाना है। 3-2-1, 3 चीज, 2 चीज, 1 चीज, ऐसे कम कर देनी है। अब कम कर दी आपने तो क्या बचा, यहां बचा ब्लाइब सु हाउजे, लेकिन इंपेरेटिव का लास्ट में ये निशान भी लगाना है आपको, ब्लाइब सु हाउजे, ब्लाइब सु हाउजे, स्टे एट होम, हो गया इंपेरेटिव। ईयर के साथ क्या हो जाएगा, लाइव टू हाउस, ब्लाइब्ड सु हाउजे, हो गया। और इसमें होगा ब्लाइबन जी सु हाउजे। इसमें केवल उड़ाया तो हमने केवल फुल स्टॉप है, लेकिन इंपेरेटिव में सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, कुम, गो, कम, ये सब, तो इसमें ये वर्ब पहले आ जाएगी, तो होगा ब्लाइबन जी सु हाउजे, ब्लाइबन जी सु हाउजे। और इंपेरेटिव जरूर आएगा, क्योंकि बात इंपेरेटिव की हो रही है, तो इंपेरेटिव के सेंटेंस में उसका साइशन आना चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया इंपेरेटिव, बस इतना ही है इंपेरेटिव। बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब का इंपेरेटिव में जैसे डू, ईयर और नॉर्मल जो वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है जाइन का, तो डू का साथ बिस्ट हो जाता है, इफ यू रिमेंबर। ईयर का जाइड होता है और जिंड होता है इसका, लेकिन केवल इंपेरेटिव के लिए ये वाली वर्ब अपना रूप ही बदल लेती है पूरा। इंपेरेटिव का जब आप करते हो तो वर्ब जाइन की जगह जाइन हो जाती है, यही वर्ब खास है बस। सो डू के साथ हो जाएगा जाइस्ट। अब जाइस्ट में एसटी तो हटेगा, लेकिन डू का जाइस्ट हो गया, ये जाइड ही रहता है, और ये जाइन, ओरिजिनल तो ऐसा कैसा आएगा, तो इसमें एसटी तो हट जाएगा, तो जाई बचा इसमें। अब ये वर्ब कहां पे काम में आती है जाइन वाली, जैसे प्यूंक्लिस जाइन, गिडुल्डिस जाइन, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ जाइन आता है। जैसे इधर लिख के बताता हूं, प्यूंक्लिस जाइन। प्यूंक्लिस जाइन का मतलब है टू बी पंक्चुअल, तो कंजुगेशन तो इसका ही होगा। गिडुल्डिस जाइन, गिडुल्डिस जाइन का मतलब है टू बी पेशेंट, तसल्ली। एयरलिस जाइन, एयरलिस का मतलब तो ऑनेस्ट, सो टू बी ऑनेस्ट। अब कोई बोले कि ईमानदार रहिए, बी ऑनेस्ट, तो बी ऑनेस्ट का इसका हो जाएगा कंजुगेशन, तो डू के साथ क्या हो जाएगा, डू, ईयर और जी के हिसाब से अगर मान लो हम इनको बनाएं
तो डू के हिसाब से क्या होगा? जाई या जाई एयरलिश। और तो कुछ है ही नहीं भाई, हो गया और बस यही था। तो ये तो सब रहेंगे ही नहीं, जाई एयरलिश। और ईयर के साथ जाइड एयरलिश, जाइड एयरलिश। और जी के साथ जाइन जी एयरलिश, जाइन जी एयरलिश। ईमानदार रहिए, जाइन जी एयरलिश। हो गया। ये है जी इंपेरेटिव। सो 3 2 1, 3 2 1, यही रूल है, 3 2 1। अब कोई एक नॉर्मल रूल जो आपका नॉर्मल वर्ब वाला जरूर है, ये तो इंपेरेटिव तो इतना ही है वैसे, लेकिन आर्बाइटन वर्ब है सपोज, तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे करते हो? इश आर्बाइटे डू टेस्ट एयर एस जी आर्बाइटन ईयर arbeitet sie arbeiten, sie arbeiten। ये सब हम लोग यूज करेंगे। इश arbeitet, du arbeitest। सो जब डू के साथ होगा तो हम लोग डू के साथ क्या हटाते हैं? एस टी हटाते हैं, तो आर्बाइटर बच जाएगा बस। श्रुति, हम लोग इंपेरेटिव डिस्कस कर रहे हैं। इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव है ना, किया हुआ है ना इंपेरेटिव। श्रुति, इंपेरेटिव समझ में आ गया ना तुमको? ओके, सो इंपेरेटिव में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और इंस्ट्रक्शन, ये 4 चीज देखते हैं। किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट देनी हो, तब इंपेरेटिव की जरूरत पड़ती है हमको। और इंपेरेटिव हम लोग केवल डू, ईयर और जी, इन्हीं 3 का इंपेरेटिव करते हैं। तो इसका रूल मैंने बताया 3 2 1, 3 2 1। मतलब जो डू है, डू के साथ जब इंपेरेटिव बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट उठ जाएगा, उसका कॉन्जुगेशन उठ जाएगा और फुल स्टॉप उठ जाएगा, बाकी बच गया वो इंपेरेटिव। ईयर के केस में सब्जेक्ट उड़ेगा और फुल स्टॉप उड़ेगा, उसकी जगह इंपेरेटिव का साइशन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। और जी के केस में केवल फुल स्टॉप उड़ेगा, लेकिन तीनों ही केस में वर्ब पहले आएगी। जैसे कम हियर, गो टू होम, स्लीप वेल, ये सब। बीट शोन। अब यहां पे इसने बोला माइने होज फास्ट निस्ट, फास्ट मियर निस्ट मेयर, पेंट मेरी छोटी हो गई। अब निस्ट मेयर का मतलब नो मोर, इसका मतलब है नई नहीं ली है इसने, इसके पहनते पहनते ही छोटी हो गई। तो पहनते पहनते छोटी हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब ये कह रहा है मुझे कोई टिप दो। मैं तो कह रहा हूं इसको कि भाई अपने छोटे भाई को दे दे, अगर वो ले ले तो लेते नहीं है आजकल छोटे भाई, गया वो जमाना। सो माइने होज ए फास्ट निस्ट मियर, गिव गिव डाइनन ब्रूडर, गिव डाइनन युंगन ब्रूडर, या फिर गिव डाइनन ब्रूडर। तो वैसे गेबन का कॉन्जुगेशन करो ना आप, गेबन का कॉन्जुगेशन करो तो डू गिब्स्ट होता है, डू गिब्स्ट। इस गेबर डू गिब्स्ट, इस यस डू गिब्स्ट। तो यहां पे हमने एस टी काट दिया, तो गिब कर दिया मैंने, गिब डाइनन ब्रूडर। मतलब ये टॉपिक को इतना
ये जो रूल बना हुआ उसी को फॉलो करें, हर चीज में इतनी कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं। ये कहते हैं कि आपको फर्क पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहे हो कि इम्पेरेटिव है कि रिक्वेस्ट है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आप जर्मन पढ़ रहे हो, जो वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज काउंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन किसी भी तरह से इजी ना बनाएं उसको। डो स्टेट आइन फाक नहीं नहीं समझ में आएगा, अमन चिंता मत करो। इनके समझ तो आ गया, बट इन्होंने हर चीज में इफ एल्स लगाया हुआ है। ऐसा लगता है कि कोडिंग कर रही हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स देख के। ओह माय गॉड। नेमन कुछ कुछ वर्ब भी इन्होंने अलग बना रखी है ना, लर्न भी करनी पड़। कॉम्प्लिकेट हर जगह है। हम्म डेटिव अलग हो गया, अक्यूजेटिव अलग हो गया, नॉमिनेटिव अलग हो गया, टेबल्स हो गए इतने सारे। तभी तो अपनी पूछ रहेगी अमन। इस नेम है कंजुगेशन, इस नेम है डू निम्स्ट निम्स्ट या डू निम्स्ट। ओके तो इस केस में नेम कर देंगे ना, इसके हटा देंगे। यस निम कर देंगे हम बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि इस habe कॉप्स मेडिसिन, तो हम कहेंगे कि हेडेक की दवा ले ले नीम कॉफ स्प्रेडन टैबलेट या निम कॉफ स्मेर्सन कॉप स्मेर्स टैबलेट है और इम्पेरेटिव। कितना बड़ा वर्ड हो गया। निम टैबलेट भी हो सकता है निम टैबलेट है या हो सकता है तो टेबलेट ले लो। इस पे नीमर म्यूड है, कह रहा है थका थका रहता हूं। थका रहता है भाई, क्या बोलोगे इसको? सो जा। स्लाफ गूट, स्लाफ गिनूक। क्या हुआ सर? गिनूक का मतलब इनफ, कम सोता है शायद। नाउन होता है, उसको उन्होंने गिनूक बना दिया, राइट? गिनूक तो अपने आप में वर्ड है। गिनूक, गिनूक का मतलब है इनफ, इनफ। श्लाफ गिनूक या गो अर्ली टू बेड, गे फ्रूअर इंस बैट। गेन से करें अपन तो जल्दी चला जा सोने। गे डू का तो गेस्ट होता है, तो एसटी तो हटेगा। गे फ्रूअर इंस बैट, सोने जल्दी जाया कर भाई। यहाँ फ्लोर क्यों आ गया? अर्ली जाता है नॉर्मल टाइम, उससे थोड़ा जल्दी जा सोने। वैसे फ्रू होता है ना अर्ली का मतलब? हाँ फ्रू भी कह सकते हो। फ्रूअर मैंने इसलिए किया कि कंपैरेटिवली जब जाते हो उससे पहले कंपैरेटिव कर दिया मैंने। ईआर लगने से कंपैरेटिव बनता है। ये आएगा अपने A2 में आएगा ये। सो इस बिन क्रांक, मैं बीमार हूं, तो क्या बोलोगे इसको? गो टू डॉक्टर या बेजूक, बिल्कुल कह सकते हैं बेजूक आर्ट्स या गे सुमार्स्ट। गो टू डॉक्टर, गे सुमार्स्ट, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास चला जा। या ये इंपेरेटिव है। अब आगे वाले में, इसमें तो हमने हर बार डू सू से बनाया है। अब की बार इन्होंने कहा है कि जो बताए ना उसी से बनाना। इनका कहना मानना है भाई। इस बार इसमें इन्होंने बता रखा है कि ईयर से बनाना है कि डू से कि जी से। 3 है ऑप्शन। मेर स्पोर्ट माखन, माखन जी बेटे मेर स्पोर्ट। मिंडेस्टन्स ड्राई लीटर वासराम टाग त्रिंकन, कम से कम 3 लीटर पानी तो पियो ही। क्या होगा सेंट? वर्ब क्या है? त्रिंकन। त्रिंक्ट मिंडेस्टन्स ड्राई लीटर वासर आम टाग। और ये लगा देते हैं, ये लगा हुआ ही है वैसे। सर ये मिंडरस्टैंड क्या है? मिनिमम 3 लीटर पानी पियो दिन का। और मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम पी जाओ 5-6 जितना भी। नहीं, मैक्सिमम। अच्छा वर्ड माइस्टन,
माइस्टन्स, जैसे मिंडेस्टन्स है ऐसे ही माइस्टन्स, माइस्टन्स मैक्सिमम. Mehr Obst und Gemüse essen. Is. Essen Sie mehr Obst und Gemüse. Yes, जी से एसन जी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही. एसन जी. Mehr Obst und Gemüse. Mehr Obst und Gemüse. Correct. Jeden Tag spazieren gehen. Du से. Geh spazieren. एसटी लगाना है क्या? No sir, no sir. नहीं लगाना ना, तो गे. Spazieren. Geh jeden Tag spazieren. Go to walk every day. Spazieren means walk हुआ sir. Yes. Spazieren gehen है ये. Go for walk. एक साथ है ये. अब यहाँ पे दो वर्ब है तो एक को हमें एंड में लगाना है, राइट? ये एक ही वर्ब है, सेपरेबल. सेपरेबल वर्ब होती है ना, स्पात्सीरन गेन, दो नहीं है एक्चुअली ये. जैसे अनमाखन है सपोज, तो आप ये मानो कि ये तो है वर्ब, ये इसका प्रीफिक्स है. तो ऐसे ही जब स्पात्सीरन गेन है तो ये कह रहे हैं कि ये दो पार्ट है, ये तो है वर्ब और ये प्रीफिक्स है, तो ये लास्ट में जाएगा. ऐसा कैसा? अब ये मत बोल देना कि ये प्रीफिक्स मेन वर्ब से भी बड़ा क्यों है. ये है तो है भाई. राइट. गे ये हाँ. For do, instead of using st, we just have to use You have to conjugate and then remove st. okay. conjugate नॉर्मल, डू के साथ st लगता है तो लगता है, लेकिन फिर उस st को हटा दो conjugate करके. Okay. और we can just use the ish conjugation. No, that is will not help. एंड में ई आएगा इश में. Yes. Next, then house जो हुस्टन ज़ाफ्ट abends nehmen कि कब सिर्फ इवनिंग लो. ईयर से, Name. ईयर का होता है नेम्ड. यस. Named. नेम्ड. बाकी वैसे ही आ जाएगा. या वैसा कभी आ सकता है, या नेम्ड abends den हुस्टन ज़ाफ्ट. Then Haus. Hustensaft. Ja. Regelmäßig Rückengymnastik machen. कमर की जिम्नास्टिक. तो इधर ही लिख देता हूं मैं. machen Sie regelmäßig Rückengymnastik. Ja. Weniger Schokolade essen. कम खा चॉकलेट. Do. Is. Ich weniger Schokoladen. Heute einen Termin beim Arzt machen. heute einen Termin beim Arzt. Yes, macht आएगा बिल्कुल. macht. heute einen Termin beim Arzt. इधर ही लिख देता हूँ. macht heute einen Termin beim Arzt. Imperative है ही लास्ट में लिखा हुआ. Also das ist dann Imperative. Imperative से ही related.
फरबोटन, फरबोटे का मतलब है कोई चीज डिनाइड हो, निषिद्ध है या प्रोहिबिटेड, इसको बोलते हैं। वास डार्फमान वास ड्यूरफंजी हियर निस्ट। It's allowed. व्हाट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड। तो इसमें हर चीज के लिए मना कर रखा है, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, पार्किंग भी मत करो, फोटोग्राफी भी मत करो, पानी में तो उछलो ही मत, वाइटर फारन आगे मत जाओ यहाँ से, फुटबॉल स्पीलन मत खेलो फुटबॉल, एसन उन ट्रिंकन खाना पीना भी मत करो, स्की फारन। तो जहाँ पे जो काम नहीं करना उसके लिए वो इस तरह से शील्ड लगा के रखते हैं, लोग समझ जाए ये काम यहाँ नहीं करना है। तो दो तरीके से हैं उसमें डार्फ के लिए, एक तो यहाँ दे रखा है हियर ड्यूरफंजी निस्ट या हियर डार्फमान निस्ट, एक ही बात है। यू आर नॉट अलाउड, यहां पे किसी एक पर्सन को मतलब उनबेकांत को बोला जाता है, उन जैसे हियर ड्यूरफंजी निस्ट, पहले में क्या अलाउ नहीं है, Listen. एसन Trinken. एसन उन ट्रिंकन, ये पूरा एक साथ है, एसन उन ट्रिंकन। तो हियर ड्यूरफंजी निस्ट कर दो या हियर डार्फमान कर दो, एक ही बात है। आपको यहाँ अलाउ नहीं है या फिर किसी को यहाँ अलाउ नहीं है, वन इज नॉट अलाउड और यू आर नॉट अलाउड, एक ही बात है। तो इन्होंने बोल दिया हियर एसन जी निस्ट एसन उन ट्रिंकन, ऐसा कैसे। स्वाई व्हाट इज नॉट अलाउड, मे बी द्राई, पहले थर्ड कर लो, द्राई Photography. तो बोल दो। दो तरीके हैं, कौन सा वाला ठीक है। Here Draftman nicht fotografieren. हियर डार्फमान Fotografieren. हियर डार्फमान नेक्स्ट फोटोग्राफियरन। नेक्स्ट Next तो लिखा हुआ है सर, ins Wasser springen. या सो हियर डार्फमान नेक्स्ट इन वाटर स्प्रिंगन, पानी में जंप नहीं करना है। Hier darf man nicht Football spielen. सो हियर डार्फमान निस्ट कर दो या फिर हियर ड्यूरफंजी निस्ट कर दो, हियर डार्फमान Fußball spielen. स्पीलन। जेक्स Skifahren. Ski. Hier darf man nicht Skifahren. ओके स्की फारन, Skifahren. हियर नेक्स्ट हियर फा जीवन वाइटर फारन है और स्वाई Weiterfahren. White. Weiterfahren. सो ये तो हो गया वाइटर फारन का, और ये हुआ पार्किंग के लिए मना है। तो स्वाई में पार्किंग का है तो क्या लिखूं, Here Durfen. Hier dürfen Sie nicht parken. Parken. ड्यूरफंजी हियर ड्यूरफंजी निस्ट पार्कन। जीवन Here Darfman. हियर डार्क Darfman ist weiterfahren. निस्ट वाइटर फारन। तो ये ड्यूरफन का एक तरह से वर्ब कॉन्जुगेशन ध्यान रखना चाहिए आपको, जी ड्यूरफन और हियर कॉन्जुगेशन तो आपको पता ही है। बताओ इश के साथ Drauf. ड्राफ नहीं डार्फ, Drauf.
Du darfst, RSG, darf, wir dürfen, ihr, Gigi, dürfen, yes, D-F-E-N, dürfen, so darf man nicht, dürfen. Ja, ist das klar? Gemacht oder nicht gemacht? Accusative. Accusative. Personal pronomen accusative. किया थोड़ी है ये वाला? नहीं सर। पर्सनल प्रोनोमेन अकुजाटिव। पर्सनल प्रोनोमेन कौन कौन से होते हैं? इश, डू, इसमें इश, डू, डी, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, ओइश, ओइस, जी, इनन, जी, इनन। छोटे वाले का स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल। अब यहां बताओ क्या आएगा? इसने बोला कि जी स्टूड इन थोलन टिप दाद रूबन। ये बात कर रही है, पार्टी की डिस्कशंस, गपशप चल रहे हैं पार्टी में। हम लोग पार्टी में टाइम पास करते हैं, किसी के बारे में बात कर लेते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, लोग बातों में मजाक करते हैं ना वैसे। सो जी स्टूड इन थोलन टिप दाद रूबन। डू यू सी दैट टॉल पर्सन, ग्रेट पर्सन? क्या मस्त बंदा है वो, दिख रहा है तुमको? तो ये कह रहा है डेन ब्लोंडन, यू मीन द ब्लॉन्ड वन, ब्लोंडन जिसके सुनहरे गोल्डन हेयर हैं, उस लड़के की बात है क्या? दस इज पेटर, ये तो पेटर है। फिंडिश डू, क्या तुमको अच्छा लगा ये? पेटर के लिए क्या आएगा? इन आकुजाटिव, हिंडन आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए फिंडिश डू इन गुड। मस्त लगा तुमको? या एर जीट जूपर आउस, यस ही इज लुकिंग सो ग्रेट। आउस जेहन इज टू लुक, ही इज लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। इस हाबे जाइने टेलीफोन नुमार, अरे मस्त, कोई बात नहीं, मेरे पास उसके नंबर है, उसको कॉल लगा ले। रूफ, डुस नहीं, उसको लगा ले, पेटर को, फिर से इन आ जाएगा। रूफ इन डो खान, कॉल लगा ले उसको, नंबर मैं दे देता हूं, इतना कर सकता हूं भाई मैं तो। देन दूसरे के बारे में, दूसरा डायलॉग, बिष्टु नौखमिट उला सुजामन। ये कह रहे हैं कि क्या तुम अभी भी उला के साथ ही रहते हो? क्यों भाई, ये रहते नहीं क्या ज्यादा दिन साथ? तो बिष्टु नौखमिट उला सुजामन, अरे ऐसे लग रहा है जैसे उलाहना दे रहा है कि अभी भी तुम उला के साथ रह रहे हो। 9 इशाब है, मैंने तो उसको 6 महीने से देखा ही नहीं, ये भी निकला, एक स्टेप आ गई। कह रहे ना ना ना, पिछले 6 महीने से। इश हाबे, उला तो फीमेल है, जी, या ich habe sie schon seit einem halben Jahr nicht mehr getroffen। मैंने तो 6 महीने से देखा नहीं, या मैं कैसे रह सकता हूँ उसके साथ? अच्छा, देन हेलो, ich glaube, लगता है हम लोग पहले मिल चुके हैं। ich glaube, ich habe sie, मैंने आपको कहीं देखा है। Natürlich am Montag haben wir, ये आपने uns आएगा इसमें एक्चुअली, haben wir uns in der Galerie getroffen, गैलरी में मिले थे ना, म्यूजियम में। Wie geht es Ihnen denn? कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, यहां पे किसी ने किसी के कपड़ों की बड़ाई करी। Du hast ja ein tolles Kleid an। कौन सी वर्ब है इस सेंटेंस में?
वर्ब past पर क्या है वर्ब? सर हाबन का वो हो जाएगा शायद हाज है ना हाबन हो गया और अनहाबन वर्ब है। 3 वर्ब बताई थी, अनहाबन, अनसीहन। यस, अनहाबन, अनसीहन और त्रागन। सो यहाँ पे ये अन लास्ट में इसलिए आया क्योंकि ये सेपरेबल है। Du hast ja ein tolles Kleid an. Tolles Kleid. तुम्हारा तो मस्त है भाई ये गाउन, जो भी पहना है तुमने बढ़िया है, ढंग है। ये तो मैंने लास्ट वीक खरीदा है। ये एस आएगा बिकॉज ये टोलेस्ट दास है इसका आर्टिकल, इसलिए इस habe es letzte Woche gekauft. I have purchased it last week. Ihr habt euch, यहाँ पे लगता है मुझे ये बंदा कर रहा है कि ihr habt euch im Café am Markt getroffen. तुम लोग मार्केट में मिले हो, कॉफी हाउस में। Du und ein junger Mann, तुम और एक यंग मैन। Du liebst nicht mehr, तुम मुझे प्यार नहीं करती। Du mich, तुम अब, तो उसने बोला natürlich liebe ich, of course I love you, natürlich liebe ich dich noch, noch मतलब still, I still love you, अभी छोड़ा नहीं है मैंने तुमको। Er ist mein Kollege, he is my colleague, ये तो कलीग है मेरा, क्यों शक करते हो। Wir hatten ein Arbeitsessen, साथ में खाना खाया हमने, तो क्या हो गया। या so Personal Pronomen, या मैंने सुना है भाई कि ये जर्मनी में लोग कई सारे तो शादी नहीं करते, ऐसे ही साथ में ही रहते हैं बस। Except India, everywhere is like that only, I guess. अच्छा, ओके। सर nowadays इंडिया में भी हो रहा है। हाँ, correct. थोड़ा थोड़ा हो रहा है इधर भी, बाकी कंट्रीज में सब में ऐसे ही चल रहा है क्या उधर यूरोप में? US and US and Germany, yes. हाँ, ओके।